হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু আনএকাডেমি। তোমাদের স্বাগত জানাই আনএকাডেমির অফিসিয়াল ইউটিউব চ্যানেल लेट्स क्रैक डब्ल्यूबी एग्जाम। तो आप सबको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं और ग्रीटिंग्स टू ऑल ऑफ यू एंड কালী পূজার প্রীতি ও শুভেচ্ছা। তো গাইস, তোমরা দিওয়ালি বা কালী পূজা ভালো করে কাটাও। এই চ্যানেলের ব্যাপারে একটু কথা বলে নি। তো ওয়েস্ট বেঙ্গল এক্সাম তোমরা দেখতে পাচ্ছ, দ্যাট মিনস ওয়েস্ট বেঙ্গল যাবতীয় প্রত্যেক পরীক্ষার নোটিফিকেশন প্লাস প্রত্যেকটা সাবজেক্টের গাইডেন্স তোমরা এই চ্যানেলে পেয়ে যাচ্ছ। সেই জন্য গাইজ চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করো অ্যান্ড বেল আইকনটা প্রেস করতে ভুলবে না। অ্যান্ড মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং, ওয়েস্ট বেঙ্গল সিভিল সার্ভিস যারা প্রিপারেশন করছো তারা এই চ্যানেলে ওয়েস্ট বেঙ্গল সিভিল সার্ভিস রিলেটেড প্রত্যেকটা সাবজেক্টের একদম চ্যাপ্টার ওয়াইজ তোমরা এখানে পড়াটা পেয়ে যাচ্ছ। ওকে, তো প্রিপারেশন করতে তোমাদের সাহায্য হবে। এছাড়া যদি নিজের ব্যাপারে বলি তাহলে আমার নাম প্রীতি কুমারী, আমি মাস্টার্স ইন জুওলজি অ্যান্ড তোমাদের আমি পলিটিক্যাল সায়েন্স এছাড়া সায়েন্স অ্যান্ড কারেন্ট অ্যাফেয়ারেরও কতগুলো টপিক আমি পড়িয়ে ফেলেছি, তো তোমরা রেকর্ডিং ক্লাসগুলো দেখতে পারো। ওকে, অ্যান্ড তোমাদের আমি টাইমিংটা বলে দিই। যদি ইউটিউবে তোমরা আমার ক্লাস করতে চাও তাহলে 6 PM তোমরা ইউটিউবে আমার ক্লাসটা পাচ্ছ। অ্যান্ড তিনটে সাবজেক্টই হচ্ছে পলিটিক্যাল সায়েন্স অ্যাকর্ডিং টু লক্ষ্মীকান্ত এখানে কভার হয়েছে। অ্যান্ড সায়েন্স যদি কথা বলি তাহলে অ্যাকর্ডিং টু NCERT আমরা সায়েন্স ফলো করছি। ক্লাস 6 থেকে 10 অব্দি আমি তোমাদের অ্যাকর্ডিং টু NCERT করাবো। অ্যান্ড কারেন্ট অ্যাফেয়ার সেটা তো কোনো কথা নেই। তো তোমরা আমার ম্যারাথন ক্লাসটাও দেখতে পারো ফর ইউর NTPC এক্সাম অ্যান্ড আদার এক্সামিনেশনস। তো এখানে 2020 জানুয়ারি থেকে সেপ্টেম্বর অবধি প্রত্যেকটা কারেন্ট অ্যাফেয়ার, ইম্পর্টেন্ট কারেন্ট অ্যাফেয়ার গুলো ওইখানে করানো হয়েছে। ওকে, তাছাড়া কারেন্ট অ্যাফেয়ারে ডিফারেন্ট টপিক নিয়ে আমি তোমাদের ক্লাসগুলো নিই, তো তোমরা ওই ক্লাসগুলো দেখতে পারো। অ্যান্ড যদি অ্যাপে কথা বলি, ওকে, আনএকাডেমি অ্যাপে, তাহলে 8টায় আমার ক্লাস তোমরা পাচ্ছ আনএকাডেমি অ্যাপে ফর সায়েন্স। ওকে, সায়েন্সের ক্লাস তোমরা 8টায় পাচ্ছ আনএকাডেমি অ্যাপে, অ্যাবসলিউটলি ফ্রি অফ কস্ট, তো ঘাবড়ানোর কিছু নেই। চলো দেখে নি আনএকাডেমি তোমরা কেন চুজ করবে। ডেইলি লাইভ ক্লাসেস পেয়ে যাচ্ছ, স্ট্রাকচার্ড কোর্স, লাইভ টেস্ট এন্ড কুইজেস অ্যান্ড আনলিমিটেড অ্যাক্সেস তোমরা এখান থেকে পেয়ে যাচ্ছ। এছাড়া তোমরা অনেকগুলো এডুকেটর দেখতে পাচ্ছ, রাইট? তোমরাও জানো যে আনএকাডেমিতে তোমরা একটা সাবজেক্টেরই অনেকগুলো এডুকেটর পাচ্ছ। অ্যান্ড যার পড়া তোমাদের বুঝতে সুবিধা হবে তার ক্লাসগুলো তোমরা করতে পারছো। এছাড়া এখানে ব্যাচেস দেওয়া হয়েছে, রাইট? তো যখনই তোমরা কোনো ব্যাচ বা কোর্স পারচেস করছো, সাবস্ক্রাইব করছো, তোমরা কোড ব্যবহার করবে। কোড কি ব্যবহার করবে? প্রীতি, PRITI, ফর ইউর 10% ডিসকাউন্ট। যদি তোমরা এই কোড ব্যবহার করো যে কোনো কোর্সের জন্য, যে কোনো কোর্স, দ্যাট মিনস UPSC হোক বা স্টেট PSC হোক বা অন্যান্য যতগুলো কোর্সেস আছে, রেলওয়ে, ব্যাংক, SSC, IIT, JEE or NEET, টিচিং এক্সামিনেশনস, সবার জন্য এই কোডটা অ্যাপ্লিকেবল। তো তোমরা যে কোনো কোর্সের জন্য 10% ডিসকাউন্ট পেতে পারো যদি তোমরা এই কোড অ্যাপ্লাই করো। ওকে, যখন তোমাদের টাইম হবে তখন তোমরা ক্লাস নিতে পারছো, ল্যাঙ্গুয়েজের কোনো ব্যারিয়ার হবে না। অ্যান্ড যে কোনো সময় যে কোনো জায়গাতেই তোমরা রেকর্ডিং অ্যান্ড PDF ম্যাটেরিয়াল গুলোর বেনিফিট অ্যাভেল করতে পারছো। যদি তোমাদের কোনো ডাউট থাকে তাহলে এডুকেটরকে জিজ্ঞেস করবে, এডুকেটর তোমাদের ডাউট ক্লিয়ার করবেন। অ্যান্ড মোস্ট ইন্টারেস্টিং থিং ওইটা হলো যে যখনই তোমরা কুইজ দাও, মানে যখনই তোমরা আনএকাডেমি অ্যাপে এডুকেটর তোমাদের কুইজ নেন, তোমরা পোলের মাধ্যমে সেই কুইজটা দাও। তো এইটাতে বেনিফিট কি? বেনিফিট হলো যে ওইখানে তোমাদের টাইমার থাকে, কত টাইমে তোমরা আনসার করতে পারছো তোমরা নিজেও দেখতে পারবে। সেজন্য লাইভ টেস্ট অ্যান্ড কুইজেস খুবই ইম্পর্টেন্ট তোমাদের এক্সামের প্রিপারেশনের জন্য। আর তোমরা এখান থেকে রিপোর্ট অ্যান্ড অ্যানালিসিস পেয়ে যাচ্ছ, তার ফলে তোমরা বুঝতে পারবে যে টপার থেকে তোমাদের কত আরো প্রিপারেশনের দরকার। তাছাড়া যেই সাবজেক্টটা উইক হবে, টাইম ম্যানেজমেন্ট, এইসব নিয়ে তোমাদের এই অ্যানালিসিসে খুবই সাহায্য হবে। ওকে, অ্যান্ড PDF অ্যান্ড লার্নিং ম্যাটেরিয়াল তোমাদের আনএকাডেমি প্রোভাইড করে দেবে।
সাবস্ক্রিপশন যখনই নেবে তো 1, 3, 6, 12 and 24 মান্থের সাবস্ক্রিপশন তোমরা নিতে পারো, যা ইচ্ছে হবে সেই সাবস্ক্রিপশনটা তোমরা নিতে পারবো, বাট আই সাজেস্ট দ্যাট 12 মান্থ ইজ বেটার, বিকজ তোমরা প্রিলিমস অ্যান্ড মেন্স দুটোরই প্রিপারেশন করবে, সেই জন্য বললাম যে 12 মান্থ ইজ বেটার। কিন্তু যে কোনো সাবস্ক্রিপশনই নিতে পারবে, এই কোডটা ব্যবহার করলে তোমরা এই সাবস্ক্রিপশনের ওপর 10% ডিসকাউন্ট পাবে। ওকে, নট ফর only West Bengal PSC, other state PSC, UPSC and other examinations। ओके, चलो, तो गाइस कंपनी एंड सीईओ 2020 में जो भी कंपनीज के जो सीईओ है, जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, राइट, तो हम लोग उसको देख लेते हैं। इस वीडियो में हम लोग उसको देखेंगे, और इससे पहले मैंने आप लोगों के लिए 2 वीडियोस और बनाकर दिए हुए हैं ब्रांड एम्बेसडर के, ओके, ब्रांड एम्बेसडर के और स्टेट ब्रांड एम्बेसडर के, ठीक है। तो ये कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ जो स्टेट के ब्रांड एम्बेसडर होते हैं उनका भी एक वीडियो क्लास मतलब रिकॉर्डिंग क्लास मैंने दिया हुआ है, तो उसको आप लोग देख लोगे। तो दोनों ही आपके मतलब तीनों ही आपके 2020 के एकदम अपडेटेड वीडियोस हैं। साथ ही साथ आपको इस स्टेट वाले में सीएम प्लस गवर्नर प्लस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और इसके अलावे फाउंडेशन डे, ठीक है, एंड कैपिटल के साथ, ओके, कैपिटल के साथ आपको ये सारे इंफॉर्मेशन मैंने प्रोवाइड किए हुए हैं। तो एक वीडियो में आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6 क्वेश्चंस का सोचो आंसर मिल रहा है, तो आप उस वीडियो को जरूर देखिए, आपके लिए बेनिफिशियल होगा। चलिए, सबसे पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। हु इज द सीईओ ऑफ माइक्रोसॉफ्ट? तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के सीईओ किसे बनाया गया है? माइक्रोसॉफ्ट सीईओ के हुएसिन। चलो देखे नहीं, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के लिए अगर आपको पूछता है तो आपको दिख रहा है नाम, सत्या नाडेला इज करेक्ट आंसर। तो भारतीय मूल के इंसान है ये सत्या नाडेला, तो आपको याद रखना है, इनको बनाया गया है हमारे माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ। चलिए, और कुछ इंपॉर्टेंट बातें देख लेते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट जो है वो कब स्टैब्लिश हुआ? तो মনে রাখবে गाइस, माइक्रोसॉफ्ट स्टैब्लिश হয়েছে 4 এপ্রিল 1975। যদি তোমাদের জিজ্ঞেস করে যে হেডকোয়ার্টার কোথায়, তাহলে মনে রাখবে হেডকোয়ার্টার হয়ে গেল ওয়াশিংটন ডিসি, ওয়াশিংটন ডিসি। এন্ড ফাউন্ডার যদি জিজ্ঞেস করে নেয়, বেশিরভাগ সিইও জিজ্ঞেস করে, কিন্তু তাও ফাউন্ডার যদি জিজ্ঞেস করে নেয় তাহলে মনে রাখবে যে বিল গেটস অ্যান্ড পল এলেন, ওকে, অ্যান্ড পল এলেন, এই দুজনে মিলে মাইক্রোসফট কোম্পানি বানিয়েছেন। এবার নেক্সট কোশ্চেনে চলে আসি। নেক্সট কোশ্চেন দেখো কি বলেছে, হু ইজ দ্য সিইও অফ গুগল? তো খুবই ইম্পর্টেন্ট एंड খুবই সোজা, অনেকবারই তোমরা নাম শুনেছো এনার, सुंदर पिचाई इज करेक्ट आंसर। ओके गाइस, सुंदर पिचाई जो है वो गूगल के सीईओ हैं। गूगल क्या है? तो गूगल एक सर्च इंजन है, ये आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है ना। तो ये क्वेश्चन आप लोगों से एसएससी में पूछा था कि गूगल क्या है, तो याद रखना है गूगल जो है वो सर्च इंजन है। जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं बता रही हूँ। गूगल को स्टैब्लिश कब किया गया? तो आप लोग का आंसर होगा 4 सितंबर 1998 इज करेक्ट आंसर। ओके, एंड अगर आपको पूछता है कि हेडक्वार्टर कहाँ है, तो बस हेडक्वार्टर जो है वो मोस्ट ऑफ द हेडक्वार्टर आपको कैलिफोर्निया में ही मिल रहा है, आपको बहुत अच्छे से पता है ये बात। एंड स्पेसिफिकली अगर मैं बताना चाहूँ तो आपका मेनलो पार्क कैलिफोर्निया, ओके, मेनलो पार्क कैलिफोर्निया इज करेक्ट आंसर। ओके, एंड गूगल के फाउंडर कौन है? तो फाउंडर का नाम बहुत बार पूछा है आप लोगों को, यहाँ पे फाउंडर का नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो फाउंडर का नाम आपको याद रखना है लैरी पेज एंड সার্গেই ব্রিন। ওকে, সার্গেই ব্রিন। ওকে, চলো নেক্সট দেখে নি। আরেকটা ইম্পর্টেন্ট কথা এখানে খুবই গুরুত্বপূর্ণ, যে প্যারেন্ট কোম্পানি কে, গুগলের প্যারেন্ট কোম্পানি কে, তাহলে তোমরা মনে রাখবে আলফাবেট।
Okay, Alphabet is parent company of Google, and also Alphabet CEO যদি জিজ্ঞেস করে তাহলে কার নাম বলবো? আবার আমরা কথা বলবো सुंदर पिचाई। ओके, तो अल्फाबेट के सीईओ भी कौन है? सुंदर पिचाई है। बिल्कुल एकदम याद रखना है, इसको भूलना नहीं है। एंड अगर आपको पूछा जाता है कि अल्फाबेट जो कंपनी है, मतलब अल्फाबेट जो इसकी पेरेंट कंपनी है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो उसका हेडक्वार्टर जो है वो आपका माउंटेन व्यू कैलिफोर्निया में है। माउंटेन व्यू कैलिफोर्निया। ओके, चलिए इसके अलावे और भी और ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। हाँ, अगर आपसे कभी पूछता है कि इसकी सब्सिडरी कंपनी कौन है, तो उसमें आप यूट्यूब का नाम भी याद रखो तो काफी है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो কি বলেছে, হু ইজ দ্য সিইও অফ ফেসবুক। তো ফেসবুকের সিইও কে আমরা সেটাও জানি যে মার্ক জুকারবার্গ ইজ কারেক্ট আনসার। ওকে, তো গাইজ মনে রাখবে যে মার্ক জুকারবার্গ কি হয়ে যান এখানে? ফেসবুকের सीईओ प्लस फाउंडर, राइट? तो सीईओ और फाउंडर दोनों हैं। अब देख लेते हैं कि फेसबुक जो है वो कब स्टैब्लिश हुआ। देन 14 फरवरी 2005 इज करेक्ट आंसर। 14 फरवरी 2005 में ये जो हमारा सॉरी 2004 है। ओके गाइस, सॉरी फॉर दैट। फरवरी 2004 में क्या हुआ? फेसबुक को बनाया गया है एंड इसका भी हेडक्वार्टर आपको कहाँ मिल रहा है? इसका भी हेडक्वार्टर आपको मेनलो पार्क में मिल रहा है, कैलिफोर्निया। ओके, मैंने पहले ही बोला कि कैलिफोर्निया में ही आप लोगों का ज्यादातर ये सारे कंपनीज के हेडक्वार्टर्स हैं, राइट? एंड फाउंडर जो है, मैंने अभी बताया कि फाउंडर भी सेम है, मार्क जुकरबर्ग जो है इसके फाउंडर है। ओके, चलो इसकी अगर सब्सिडरी पार्ट की बात की जाती है तो आपको याद रखना है कि फेसबुक ने किसको खरीदा है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा व्हाट्सएप। ओके, व्हाट्सएप जो कंपनी है इसको भी फेसबुक ने खरीद लिया है। एंड ऑक्यूलस और भी बहुत सारे कंपनीज हैं जिसको फेसबुक ने अपने अंडर रखा है, मतलब वो उसकी सब्सिडरी पार्ट है। ओके, सब्सिडरी कंपनी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हु इज द सीईओ ऑफ यूट्यूब। तो यूट्यूब के सीईओ कौन है? तो हम लोग देख लेते हैं पिक्चर में किसका नाम दिख रहा है, मतलब पिक्चर किसकी दिख रही है। तो गाइज सुजन वोस्की। ओके, सुजन वोस्की इज करेक्ट आंसर। तो याद रखना है आपको, यूट्यूब जो है वो आपका कब स्टैब्लिश हुआ है? ये आपका 14 फरवरी 2005 में स्टैब्लिश हुआ है। ठीक है, फेसबुक जो है वो आपका 2004 में हुआ था। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं इसका हेडक्वार्टर कहाँ मिल रहा है आपको। तो बिल्कुल कैलिफोर्निया में ही मिलेगा, बस थोड़ा सा नाम अलग है, सैन ब्रूनो। ओके, सैन ब्रूनो कैलिफोर्निया। ओके, याद रखना है सैन ब्रूनो कैलिफोर्निया में इसका हेडक्वार्टर है। ओके, चलो फाउंडर का नाम देख लेते हैं। तो इसमें फाउंडर के नाम में आपको 3 नाम दिख रहे हैं। कौन कौन से 3 नाम दिखेंगे? तो वहां पर नाम आ जाता है आपका जावेद करीम। ओके, जावेद करीम, स्टीव चेन एंड एक और है चाद हर्ले। ओके, चाद हर्ले। तो ये 3 जो है इसके फाउंडर हैं, आपको याद रखना होगा। मेनली आपको यहाँ से सीईओ का ही नाम पूछा जाता है। ओके, गूगल के लिए आपको लैरी पेज का नाम सिर्फ याद रखना है, उसके फाउंडर का नाम। बट हेडक्वार्टर जो है वो इसका भी कैलिफोर्निया है, सैन ब्रूनो कैलिफोर्निया। फाउंडर जावेद करीम, स्टीव चैन एंड चाद हर्ले जी इज करेक्ट आंसर। कब ये स्टैब्लिश हुआ? 14 फरवरी 2005। सीईओ कौन है? सुजैन वोर्की किस करेक्ट आंसर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Who is the CEO of Apple? तो एप्पल से बहुत अच्छे तरीके से आप लोग परिचित हो, राइट? और बहुत पहले ये मीम भी चलता था, अभी भी चलता है कि भाई हम अगर एक किडनी बेच दे तो एक एप्पल का फोन आ जाएगा। तो चलिए बिल्कुल उसी एप्पल की मैं बात कर रही हूँ।
तो आपको याद रखना है कि एप्पल का जो सीईओ है उसका नाम क्या है। तो ये पिक्चर में जो आपको दिख रहे हैं इनका नाम है टीम कुक। ओके, टीम कुक इज करेक्ट आंसर। तो टीम कुक जो है उनका नाम आपको याद रखना है। अब चले आते हैं और कुछ इंफॉर्मेशन, जैसे एप्पल जो है वो कब स्टैब्लिश हुआ। तो गाइस आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 1976 इज करेक्ट आंसर। तो याद रखना है एप्पल 1 अप्रैल 1976 में बना है। अब आते हैं इसके हेड क्वार्टर के ऊपर। तो इसका हेड क्वार्टर सेम कैलिफोर्निया, बस जगह थोड़ा सा अलग हो जाता है। उस जगह का नाम है कुपर्टिनो, कैलिफोर्निया। ओके, एंड चले आते हैं हम इसके फाउंडर के ऊपर। तो इसके फाउंडर का नाम क्या है? इसके फाउंडर का नाम याद रखिएगा, स्टीव जॉब इज करेक्ट आंसर। स्टीव जॉब्स, और भी दो हैं बट स्टीव जॉब जो है इनका नाम ही याद रखिए, बहुत मतलब काफी है ये। स्टीव जॉब, स्टीव वोजनाइक, स्टीव वोजनाइक, डब्ल्यू यहाँ, okay? चलो कोई बात नहीं। रोनाल्ड वॉयन, ओके, रोनाल्ड वॉयन। ओके, तो ये तीन इसके फाउंडर हैं, याद रखिएगा। उससे इंपॉर्टेंट है कि एप्पल जो है उसके सीईओ का नाम टिम कुक है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादा मायने रखता है। अच्छा, एक बात और मैं बता दूं, एक बात और यहाँ पे बता दूं कि YouTube की अगर पेरेंट कंपनी का नाम पूछा जाता है तो याद रखिएगा आप लोग कि YouTube की पेरेंट कंपनी कौन है? गूगल है। ओके, गूगल ने इसको 2006 में खरीद लिया था, तो इसलिए पेरेंट कंपनी कौन होगी इसकी? गूगल होगी। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। हु इज द सीईओ ऑफ ट्विटर? तो ट्विटर के सीईओ कौन है अगर आपसे पूछा जाता है तो देख लेते हैं नाम किसका आता है। तो बिल्कुल पिक्चर में जो आपको दिख रहे हैं इनका नाम है जैक डोर्जी। ओके, जैक डोर्जी इज करेक्ट आंसर। अगर आपको कभी पूछता है ट्विटर के सीईओ कौन है तो आपका आंसर होगा जॉर्ज डोर्जी। ओके, चलो अब देख लेते हैं ट्विटर जो है वो कब बना है। तो 21 मार्च 2006 ट्विटर को बनाया गया। ट्विटर आप लोगों को पता है एक सोशल मीडिया साइट है, आप लोग यूज करते हो, तो सारी चीजें इसके बारे में आप लोगों को पता है, राइट। इसका हेड क्वार्टर अगर आपसे पूछा जाता है देन आपका आंसर हो जाएगा सैन फ्रांसिस्को, सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया, यूएसए हो गया, राइट। एंड फाउंडर अगर पूछा जाता है तो फाउंडर जो है इसके बहुत सारे हैं, बट सेम आप डॉर्जी का नाम ही याद रखिए, काफी है। ओके, डॉर्जी जो है वो एक फाउंडर में एक नाम डॉर्जी का भी आता है। इसके अलावे आप इवन विलियम, नोआ ग्लास एंड बिज स्टोन का नाम भी याद रख सकते हो। चलो मैं लिख देती हूँ इसको, बट आप सिर्फ जैक डोर्जी का नाम याद रखिए, वही सीईओ है और फाउंडर में से एक उनका नाम है। ओके, चलिए, तो इवन विलियम्स, नोहा ग्लास एंड बिज स्टोन। ओके, एंड बिज स्टोन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या बोल रहा है। 7 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है? हु इज द सीईओ ऑफ व्हाट्सएप? राइट, तो व्हाट्सएप जो है हम लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं। कोई अगर फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम नहीं भी यूज करता है तो वो व्हाट्सएप जरूर यूज करता है, राइट। तो व्हाट्सएप के अगर सीईओ का नाम पूछा जा रहा है तो बहुत इंपॉर्टेंट, इनका नाम क्या है? इनका नाम है क्राइस डेनियल। ओके, क्राइस डेनियल इज करेक्ट आंसर। अब चले आते हैं व्हाट्सएप जो है इसको कब बनाया गया। तो गाइस 3 मई 2009 इज करेक्ट आंसर। तो 2009 3 मई से व्हाट्सएप जो है हमारे जिंदगी में आने की तैयारी कर चुका था। और अब तो बिना व्हाट्सएप के काम नहीं होता है, कोई भी इंफॉर्मेशन देना है होता है तो व्हाट्सएप पे दे दो, ग्रुप बनाना है व्हाट्सएप ग्रुप बना लो, है ना। आप लोग तो जानते ही हो अच्छे तरीके से। नेक्स्ट चले आते हैं, इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ हो जाएगा? इसका हेडक्वार्टर भी कैलिफोर्निया हो जाएगा, बिल्कुल एकदम याद रखना है। और फाउंडर की बात कर लेते हैं। तो इसके जो फाउंडर हैं उनका नाम है ब्रायन एक्टन। ओके, ब्रायन एक्टन एंड जॉन काउम
इज करेक्ट आंसर। ओके, फाउंडर याद रखना है, व्हाट्सएप के फाउंडर है ब्रायन एक्टन एंड जॉन क्राउन। अब आते हैं पेरेंट कंपनीज की। मैंने अभी बताया था आप लोगों को कि किसने खरीद लिया व्हाट्सएप को, तो बिल्कुल याद रखना है कि फेसबुक ने व्हाट्सएप को खरीद लिया था, तो इसलिए पेरेंट कंपनी कौन हो गई इसकी, पेरेंट कंपनी हो गई इसकी फेसबुक। तो फेसबुक जो है वो 2014 में क्या करती है, 19 फरवरी 2014 में ये व्हाट्सएप को खरीद लेती है और इसकी पेरेंट कंपनी हो जाती है। ठीक है, ऑलमोस्ट लगभग आपका अप्रॉक्स 20 अरब डॉलर में इसको खरीदती है। चलो, तो इतना नहीं जाना है डिटेल में, आपको बस इतना याद रखना है कि व्हाट्सएप के सीईओ कौन है और इसकी पेरेंट कंपनी कौन है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हु इज द सीईओ ऑफ इंस्टाग्राम? तो इंस्टाग्राम के सीईओ के बारे में पूछा हुआ है आप लोगों को, तो पिक्चर देखिए किसका दिख रहा है। इंस्टाग्राम के जो सीईओ है उनका नाम है एडम मोसेरी इज करेक्ट आंसर। तो याद रखिएगा, इंस्टाग्राम जो है इसको बनाने वाले जो है, जिनका नाम केविन सिस्ट्रॉम था, सिस्ट्रॉम है, अभी भी है, बट इसको बेच दिया उन्होंने। किसको बेचा? फेसबुक को बेचा। तो इसलिए आपको अब याद रखना है, क्या क्या याद रखना है, इंस्टाग्राम जो है उसको कब बनाया गया था, लॉन्च किया गया था, तो 6 अक्टूबर 2010 को ये लॉन्च हुआ है। हेडक्वार्टर इसका भी कैलिफोर्निया हो जाएगा। एंड फाउंडर जो है ये पहले सीईओ थे, लेकिन अब एडम मोसेरी जो है ये सीईओ है, मतलब हेड है। ठीक है, तो फाउंडर जो है उनका नाम क्या है? फाउंडर का नाम है केविन सिस्ट्रोम। ओके, केविन सिस्ट्रोम एंड माइक, इधर लिखते हुए ना दिखाई देगा, माइक फ्रेजर। ओके, बट ये जो केविन सिस्ट्रोम है इन्होंने ही बनाया था, मेनली इन्हीं का नाम आता है, और ये सीईओ कुछ टाइम पहले तक थे, बट बाद में फिर क्या हुआ, इसकी पेरेंट कंपनी, मतलब इसको खरीद लिया किसने? अभी मैंने बताया कि इसको फेसबुक ने खरीद लिया है, इसीलिए फेसबुक ने जो अब अपॉइंट किया हुआ है एडम मोसेरी को अपॉइंट किया हुआ है एज अ सीईओ। ठीक है, तो ये 9 अप्रैल को खरीद लिया जाता है, फेसबुक द्वारा खरीद लिया जाता है 9 अप्रैल 2012 को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हु इज द सीईओ ऑफ विकिपीडिया? तो विकिपीडिया का सीईओ कौन है? विकिपीडिया के सीईओ कौन है, देख लेते हैं हम लोग कौन है। तो बिल्कुल विकिपीडिया का लोगो यहाँ दिख रहा है, इंसाइक्लोपीडिया, राइट। तो इसके सीईओ का नाम हो गया आपका जिमी डोनाल्ड वेल्स। ठीक है, जिमी डोनाल्ड वेल्स इज करेक्ट आंसर। अब चले आओ, विकिपीडिया को कब लॉन्च किया गया? तो 15 जैन 2001 को इसको लॉन्च किया गया है। एंड इसका भी हेडक्वार्टर आपको कहाँ मिल रहा है? तो हेडक्वार्टर जो है वो आपका सैन फ्रांसिस्को में हो जाएगा। और फाउंडर कौन है? तो फाउंडर में आपको बिल्कुल इन्हीं का नाम याद रखना है, फाउंडर में इन्हीं का नाम आता है। तो जिमी डोनाल्ड वेल्स जो है ये फाउंडर है, और साथ ही साथ और एक नाम मैं लिख देती हूँ फाउंडर में, उनका नाम है लैरी सेंगर। लैरी पेज नहीं है, तो रिमेंबर लैरी सेंगर इज करेक्ट आंसर। तो फाउंडर जो है वो आपके वेल्स भी हैं और सेंगर भी हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, हु इज द सीईओ ऑफ याहू? तो याहू के सीईओ कौन है? तो एक मैम है यहाँ पर याहू की सीईओ, जिनका नाम है मैरिसा मेयर। ओके, मैरिसा मेयर जो है वो याहू की सीईओ है। अब आते हैं याहू को कब लॉन्च किया गया? तो गाइस जनवरी 1994 को याहू को लॉन्च किया गया। एंड इसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ मिल रहा है? सेम कैलिफोर्निया में मिल रहा है, बस थोड़ा सा नाम अलग हो जाता है। सनी वैली में, आप सनी वैली कैलिफोर्निया में आपको मिल रहा है इसका हेडक्वार्टर। ओके, चलो अब चले आते हैं, इसकी पेरेंट कंपनी जो है वो कौन है? ये मैं लिख देती हूँ, बट आपको कभी पूछता नहीं है ये। तो पेरेंट कंपनी अगर इसकी पूछी जाती है याहू की, तो आपको नाम बताना होगा वेरिजोन मीडिया। ओके, बट ये कभी पूछा नहीं है, तो आप सिर्फ सीईओ याद रखिए, उतना काफी है। फाउंडर की अगर मैं बात कर दूं, तो फाउंडर का नाम क्या है? जेरी यंग एंड डेविड फिलो। ओके, एंड डेविड फिलो,
तो ये दोनों इनके फाउंडर हैं एंड सीईओ का नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है इन सारे इंफॉर्मेशन में, तो उनका नाम है मैरिसा मेयर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द सीईओ ऑफ अमेजन। बहुत इंपॉर्टेंट क्योंकि अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स, राइट, तो फोर्ब्स आपको पता है क्या करती है, बिलियनियर्स का नाम बताती है, मतलब मोस्ट रिचेस्ट, अगर 2020 के रिचेस्ट पर्सन की मैं बात करती हूँ तो बिल्कुल जो सीईओ है अमेजन के उन्हीं का नाम आता है, और आप लोगों को ये बात पता है, और उनका नाम है जेफ बेजोस, राइट। तो ये फाउंडर भी हैं अमेजन के, और साथ ही साथ दुनिया के सबसे अमीर आदमी है ये, राइट। तो इसको याद रखिएगा। तो यहाँ पर आंसर क्या हो गया, जेफ बेजोस इज करेक्ट आंसर। फाउंडर आप लोगों को पता चल गया, सेम है ये। और अगर हेड क्वार्टर पूछा जाता है तो आपका हेड क्वार्टर जो है वो हो जाएगा सेटल वॉशिंगटन डीसी। ओके, वॉशिंगटन डीसी में इसका हेड क्वार्टर है। ओके, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। अच्छा, इसका फॉर्मेशन डे क्या है, मतलब सॉरी, फॉर्मेशन डे मैं बोल रही हूँ, इसका लॉन्चिंग डेट क्या है, तो आपका वो हो जाएगा 5 जुलाई 1994 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, हु इज द सीईओ ऑफ अलीबाबा। तो गाइज अलीबाबा क्या है, एक चाइनीज कंपनी है, आप लोगों को पता है, ई कॉमर्स कंपनी है, रिटेल इंटरनेट टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई अलीबाबा बोलकर एक कंपनी है ना। तो अब इसके सीईओ कौन है, इनको देख लेते हैं। तो अलीबाबा के जो सीईओ हैं उनका नाम है डैनियल ज़ैंग। ओके, डैनियल ज़ैंग इज करेक्ट आंसर। एंड अगर फाउंडर का नाम पूछा जाता है तो जैकमा जो है वो इसके फाउंडर हैं। मैंने पहले ही बताया चाइनीज कंपनी है, तो आपको इसी तरीके के नाम मिलेंगे। तो अलीबाबा के जो सीईओ हैं उनका नाम है डैनियल ज़ैंग। चलो इसका लॉन्चिंग डेट देख लेते हैं क्या है। 4 अप्रैल को इसको लॉन्च किया गया था एंड 4 अप्रैल 1999। ओके, हेड क्वार्टर इसका क्या है, चाइना की ही जगह कंपनी है, तो जाहिर सा बात है वही का जगह होगा। तो हैंगजो, ओके, हैंगजो चाइना जो है ये इसका हेड क्वार्टर है। एंड फाउंडर का नाम हमने बताया, जैकमा जो है वो इसके फाउंडर रह चुके हैं। तो अलीबाबा जो है वो एक ई कॉमर्स कंपनी है चाइना की। नेक्स्ट देख लेते हैं, हु इज द सीईओ ऑफ लिंक्डइन। ओके, तो लिंक्डइन के सीईओ कौन है, आपको किसका नाम दिख रहा है, तो रायन रॉसलैंस्की इज करेक्ट आंसर। रैन रॉसलेस्की इसके लिंक्डइन के सीईओ हैं। ओके, तो अब हम लोग चले आते हैं, ये लिंक्डइन जो है वो 2002 में लॉन्च किया गया था एंड इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, इसका भी हेड क्वार्टर आपका कैलिफोर्निया ही पड़ेगा। कैलिफोर्निया में ही है इसका हेड क्वार्टर, सनी वैले में इसका हेड क्वार्टर है। ओके, सनी वैल में, कैलिफोर्निया। चलो देख लेते हैं इसके फाउंडर का नाम। तो फाउंडर में आपको बहुत सारे नाम मिलेंगे, कौन कौन से हैं आपके नाम, तो फाउंडर इंपॉर्टेंट नहीं है बट आप नाम सुन लीजिए। रेड हॉफमैन है, फिर एलन ब्लू है, जीन वैलेट है एंड इरी ली है। तो कोई जरूरत नहीं है इतने नाम याद रखने की, लेकिन हाँ लिंक्डइन की पेरेंट कंपनी का नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। पेरेंट कंपनी कौन है, माइक्रोसॉफ्ट। ओके, माइक्रोसॉफ्ट जो है वो लिंक्डइन की पेरेंट कंपनी है, तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हु इज द सीईओ ऑफ फ्लिपकार्ट। तो फ्लिपकार्ट जो है उसके सीईओ दिखने में कैसे लग रहे हैं, दैट मीन्स इंडियन ही है ना। आंसर क्या होगा, कल्याण कृष्ण मूर्ति इज करेक्ट आंसर। और फ्लिपकार्ट जो है वो कब लॉन्च हुआ, अक्टूबर 2007 में फ्लिपकार्ट को लॉन्च किया गया है। और फ्लिपकार्ट का हेडक्वार्टर आपको कहाँ मिल रहा है, तो बेंगलुरु इज करेक्ट आंसर। हमारे यहाँ पर जितने हैं मैक्सिमम का बेंगलुरु है। फाउंडर कौन है, तो चलो फाउंडर के नाम पे हम लोग जाते हैं। फाउंडर इनके हैं सचिन बंसल, सचिन बंसल एंड बीनी बंसल। ओके, एंड बीनी बंसल, तो ये हो गए फाउंडर किसके, फ्लिपकार्ट के। ओके, चलिए इसके अलावे जो मिंत्रा या ई कार्ट फोन पे है ये इसकी सब्सिडरी कंपनी है। ओके, मैंने क्या बोला, मिंत्रा, आप लोग कपड़े वगैरह की शॉपिंग कर लेते हो मिंत्रा से, राइट। ई कार्ट एंड फोन पे
फोन पे जो है उसके, फोन पे के आपके ब्रांड एम्बेसडर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, आमिर खान एंड आलिया भट्ट है इसके ब्रांड एम्बेसडर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। हु इज द सीईओ ऑफ नोकिया? तो नोकिया के सीईओ का नाम क्या है? तो देखते हैं कि नोकिया कनेक्टिंग पीपल जो इसका टैगलाइन हुआ करता है, तो नोकिया के जो सीईओ हैं उनका नाम है, उनका नाम है पेक्का लैंडमार्क। ओके, पेक्का लैंडमार्क इज करेक्ट आंसर। तो याद रखना है आपको कि पेक्का जो है, पेक्का लैंडमार्क, ये नोकिया के सीईओ का नाम है। अब आते हैं नोकिया कंपनी जो है वो कब से है? तो 12 मई 1865 से ये कंपनी है, ये मटेरियल्स बना रही हैं। एंड इसका हेड क्वार्टर जो है वो आपका फिनलैंड में पड़ता है। इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि हेड क्वार्टर जो है वो आपका इस्पो फिनलैंड में है। ओके, फिनलैंड। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं फाउंडर, फाउंडर कौन है इसके? तो गाइस फाउंडर की बात अगर मैं करूं तो 3 फाउंडर के नाम आते हैं यहाँ पे। एक का नाम है फेडरिक एडेस्टन, and second one Leo, and third one Eduard Pollen। तो इम्पोर्टेंट नहीं, आप नोकिया के सीईओ का नाम याद रखिए, साथ में इसका हेडक्वार्टर फिनलैंड में है, इसको याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को पूछा है, हु इज द सीईओ ऑफ पेटीएम? पेटीएम के सीईओ का नाम क्या है? तो पेटीएम वॉलेट का यूज आप लोग सब मैक्सिमम लोग करते होंगे। तो पेटीएम के जो सीईओ है उनका नाम है भावेश गुप्ता। ओके, भावेश गुप्ता इज करेक्ट आंसर। अब चले आते हैं पेटीएम को कब लॉन्च किया गया? तो अगस्त 2010 में पेटीएम को लॉन्च किया गया है। इसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ मिलेगा? तो गाइस इसका हेडक्वार्टर नोएडा में है, नोएडा में इसका हेडक्वार्टर है, यूपी। एंड अगर इसके फाउंडर का नाम पूछता है तो इसके फाउंडर का नाम हो जाएगा विजय शेखर शर्मा। ओके, विजय शेखर शर्मा। तो ये हो गए फाउंडर। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट कंपनी हमारी कौन सी है? अच्छा, इसकी पेरेंट कंपनी अगर पूछी जाती है तो मैं बता दूं आप लोगों को, पेरेंट कंपनी जो है 197 कम्युनिकेशन जो है इसकी पेरेंट कंपनी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, हु इज द सीईओ ऑफ वॉलमार्ट? वॉलमार्ट के सीईओ का नाम क्या है? और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको अगर बताऊं तो वॉलमार्ट जो है वो किसकी पेरेंट कंपनी है? फ्लिपकार्ट की पेरेंट कंपनी है। तो उसको याद रखना कि वॉलमार्ट का अगर सब्सिडियरी पूछा जाता है या फ्लिपकार्ट का पेरेंट पूछा जाता है तो आप आंसर वॉलमार्ट को करेंगे, वाइस वर्सा, मतलब समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। फ्लिपकार्ट, फ्लिपकार्ट जो है, फ्लिपकार्ट का पेरेंट अगर पूछे तो वॉलमार्ट, ठीक है, लेकिन वॉलमार्ट का सब्सिडरी पूछे तो फ्लिपकार्ट, बस यही फर्क है। तो सीईओ ऑफ वॉलमार्ट कौन है उनका भी देख लेते हैं, कौन है ये। पिक्चर में किनका नाम दिख रहा है, मतलब किनकी पिक्चर नजर आ रही है, सॉरी। तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा डॉग मैकमिलन इज करेक्ट आंसर। डॉग मैकमिलन जो है वो आपके वॉलमार्ट के सीईओ हैं। अब हम लोग आते हैं वॉलमार्ट के ऊपर थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। तो 2 जुलाई 1962 इसको स्टैब्लिश किया गया। एंड इसके अलावा इसका हेड क्वार्टर आपको कहाँ मिल रहा है? तो गाइज इसका हेड क्वार्टर जो है वो आपका बैंटनविल, आरकांसस। ओके, आरकांसस जो है वहां पर इसका हेड क्वार्टर है। एंड अब चले आते हैं इसके फाउंडर का नाम क्या है? तो इसके फाउंडर का नाम थोड़ा अलग है। इसके फाउंडर हो गए आपके सैम वॉल्टन। ओके, सैम वॉल्टन जो है ये इसके फाउंडर है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्फोसिस के सीईओ कौन है? तो इन्फोसिस के सीईओ का नाम क्या है? सलील परेश इज करेक्ट आंसर। इन्फोसिस के सीईओ का नाम है सलील परेश। अब देख लेते हैं इसको बनाया कब गया था, मतलब स्टैब्लिशमेंट कब इसकी हुई थी? तो 7 जुलाई 1981। ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, इसका हेडक्वार्टर आपको क्या कहाँ मिलेगा? हमारे बेंगलुरु में मिल रहा है।
इलेक्ट्रॉनिक सिटी ऑफ इंडिया भी बेंगलुरु को बोलते हैं ना, साथ ही साथ सिलिकॉन वैली बोलते हैं, गार्डन सिटी बोलते हैं, तो याद रखना है बेंगलुरु को के और भी जितने नाम है। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं इसके फाउंडर का नाम क्या है। तो इसके फाउंडर का नाम है NR नारायण मूर्ति। ओके, NR नारायण मूर्ति। चलिए तो याद रखिएगा, फाउंडर का नाम भी मैंने यहाँ पे बता दिया। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट कंपनी कौन सी है? BSNL, राइट। तो भारत की ये जो BSNL है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर चलती है, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके फाउंडर हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इसके CEO कौन है। तो इसके CEO है प्रवीण कुमार पुरवार। ओके, प्रवीण कुमार पुरवार इज करेक्ट आंसर। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है ये इसके फाउंडर हो गए, और इसका हेड क्वार्टर कहाँ हो जाएगा फिर? ऑब्वियसली न्यू दिल्ली में हो जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, हु इज द CEO ऑफ डेल। तो डेल के CEO का नाम क्या क्या है यहाँ पे? तो डेल के CEO का नाम है माइकल एस डेल। तो नाम देखो डेल, और कंपनी का नाम भी क्या है? डेल। तो ऐसे आप लोग याद रख सकते हो, और बहुत ही इजी है, सबसे इजी यही है मेरे ख्याल से। तो डेल जो है वो आपका कब स्टैब्लिश हुआ था? तो इसको लॉन्च किया गया था 1 फरवरी 1984 में लॉन्च किया गया। काफी पुरानी कंपनी है, राइट। तो इसका हेड क्वार्टर आपको कहाँ मिल रहा है? तो इसका हेड क्वार्टर जो है वो आपको टेक्सास में मिल रहा है, यूएस में। ठीक है, टेक्सास यूएस में आपको हेड क्वार्टर मिल रहा है। फाउंडर का नाम क्या है? तो बिल्कुल सेम है, माइकल एस डेल जो है इसके फाउंडर है। तो यहाँ पर फाउंडर और CEO दोनों सेम है, और इनफैक्ट कंपनी का नाम भी इनके सरनेम पे है। नेक्स्ट देख लो, हु इज द CEO ऑफ IBM। तो IBM जो है इसके CEO कौन है? बिल्कुल देखो यहाँ नाम दिख रहा है आपको, तो अरविंद कृष्णा इज करेक्ट आंसर। अरविंद कृष्णा जो है वो IBM के CEO है। अब देख लेते हैं IBM कब स्टैब्लिश हुई है। तो गाइज याद रखिएगा कि 16 जून 1911, बहुत पुरानी कंपनी हो गई, राइट। 1911 के बारे में हम लोग क्या पढ़ते थे? हम लोग 1911 के बारे में हिस्ट्री में ये पढ़ते थे, और जो आपके क्वेश्चन में आता है वो ये कि हमारा कैपिटल ट्रांसफर हुआ था कैलकाटा टू दिल्ली, साथ ही साथ बंगाल पार्टीशन का प्रपोजल कैंसिल हुआ था, एंड जन गण मन को फर्स्ट टाइम गाया गया था, राइट। तो मैंने आपको कुछ हिस्ट्री की बातें रिवाइज करवा दी यहाँ पे, इंपॉर्टेंट है ये ईयर इसलिए। तो IBM जो है वो 16 जून 1911 को बनाई जाती है, एंड इसका हेड क्वार्टर आपको कहाँ मिल रहा है? बिल्कुल इसका हेड क्वार्टर आपको न्यूयॉर्क में मिल रहा है। तो न्यूयॉर्क में इसका हेड क्वार्टर है, एंड इसके फाउंडर का नाम क्या है? इसके फाउंडर का नाम है चार्ल्स रेनलेट फ्लिंट। ओके, चार्ल्स रेनलेट फ्लिंट जो है इसके फाउंडर का नाम है। ओके गाइस, चलिए तो रेड हैट अगर नाम आपने सुना होगा तो इसकी सब्सिडरी कंपनी में रेड हैट का नाम आता है। ओके, रेड हैट का नाम आता है, रेड हैट टेक्नोलॉजी। तो चलिए सिर्फ IBM के CEO का नाम याद रखिएगा, यहाँ से अरविंद कृष्णा इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हु इज द CEO ऑफ विप्रो। तो विप्रो के CEO कौन है? देखिए यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, तो थेरी डेलापोर्ट इज करेक्ट आंसर। विप्रो के CEO का नाम है थेरी डेलापोर्ट। अब हम लोग देखते हैं कि विप्रो जो है उसको कब बनाया गया। तो विप्रो जो है वो 29 दिसंबर 1945 में ये बना है, एंड इसका भी हेड क्वार्टर आपको कहाँ मिल रहा है? तो गाइस बिल्कुल गार्डन सिटी ऑफ इंडिया, दैट इज बेंगलुरु। बेंगलुरु में ही इसका हेड क्वार्टर मिल रहा है, एंड इसके फाउंडर का नाम क्या है? तो याद रखिएगा MH हसन प्रेम जी। ओके, MH हसन प्रेम जी इज करेक्ट आंसर। तो ये इसके फाउंडर का नाम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखो क्या पूछा है, हु इज द CEO ऑफ TCS। तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विस जो है, जो आप लोगों का एग्जामिनेशन भी लेती है, तो इसलिए ये थोड़ा और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसके CEO का नाम है राजेश गोपीनाथन। ओके,
तो टीसीएस के सीईओ हो गए राजेश गोपीनाथन। अब आते हैं कि ये टीसीएस कब स्टैब्लिश हुई है। तो टीसीएस जो है वो आपका 1 अप्रैल 1968 को स्टैब्लिश होती है। एंड इसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ मिलेगा? इसका हेडक्वार्टर आपको मुंबई में मिल रहा है। एंड फाउंडर का नाम अगर पूछे तो बिल्कुल आप लोगों को एक नाम तो पता ही है, JRD टाटा का नाम आता है ना? टाटा एंड सन्स का नाम आ रहा है। और इसके अलावे भी फकीर चंद्र कोहली का नाम आता है। तो ये नाम आप लोग हो सकता है पहली बार सुन रहे हो। तो फकीर चंद कोहली, ओके, फकीर चंद कोहली एंड JRD टाटा का नाम फाउंडर में आ रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है एडोब। एडोब जो है एडोब जो है उसको उसके सीईओ का नाम क्या है? तो देख लेते हैं हम लोग। एडोब जो है वो एक आपका मल्टीनेशनल सॉफ्टवेयर कंपनी है, आपको ये पता है। इसके अलावा इसके जो सीईओ है उनका नाम है शांतनु नारायण। ओके, शांतनु नारायण इज करेक्ट आंसर। तो एडोब जो है वो कब स्टैब्लिश हुआ? दिसंबर में स्टैब्लिश हुआ है। ये दिसंबर 1862 में सॉरी दिसंबर में स्टैब्लिश हुआ है, 1982 में स्टैब्लिश हुआ है। एंड इसका भी आपको हेडक्वार्टर कहाँ मिल रहा है? तो बिल्कुल हेडक्वार्टर आपको कैलिफोर्निया में मिलेगा। सैन जूज में आपको इसका हेडक्वार्टर मिल रहा है, कैलिफोर्निया। देख लेते हैं नेक्स्ट, इसके फाउंडर का नाम क्या है? तो फाउंडर का नाम जॉन वॉर्नॉक। ओके, जॉन वॉर्नॉक और साथ में चार्ल्स गेस्टैक इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो दो फाउंडर है इसके, चार्ल्स गेस्टैक। चलिए, तो इम्पोर्टेंट क्या है? इम्पोर्टेंट बस सीईओ है, आप इसको बस याद रखिए, काफी है। शांतनु नारायण इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, पेप्सिको, जो पेप्सी की कंपनी होती है ना, उसके बारे में पूछ रहा है। देखो इसके साथ कितनी सारी है, पेप्सी है, फिर आपका और भी आपका ट्रॉपिकाना वगैरह है। तो इसके सीईओ का नाम क्या है? तो पेप्सिको के सीईओ का नाम है आपका रमन लेगवाटा। रमन लेगवाटा इज करेक्ट आंसर। अब आते हैं हम लोग, इसको कब स्टैब्लिश किया गया? तो 1965 में इसको स्टैब्लिश किया गया है। एंड इसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ मिल रहा है? तो बिल्कुल इसका हेडक्वार्टर आपको न्यूयॉर्क में मिल रहा है। काफी है इतना जानना। एंड फाउंडर जो है वो आपका सेलेव ब्राधम जो है, ये इसके फाउंडर है। ठीक है, फाउंडर आपसे पूछेगा नहीं तो घबराना नहीं है। जिसका बस मैंने बोला है कि याद रखिएगा लैरी पेज, तो वो बस याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हु इज द सीईओ ऑफ कोका कोला? तो कोका कोला के सीईओ कौन है? देखते हैं। कोका कोला के सीईओ जो है वो है जेम्स क्विंसी। ओके, जेम्स क्विंसी जो है इनका करेक्ट आंसर हो गया। तो कोका कोला को कब स्टैब्लिश किया गया है? 29 जनवरी को स्टैब्लिश किया गया है 1892। एंड इसका आपका हेड ऑफिस आपको कहाँ मिल रहा है? तो गाइस जॉर्जिया यूएसए में इसका हेड ऑफिस है। एंड इसके फाउंडर का नाम क्या है? तो आसा कैंडलर जो है इसके फाउंडर है। तो सिर्फ इतना याद रखो, जेम्स क्विंसी, जॉर्जिया यूएसए में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट देख लेते हैं। और हमारे इंडिया की जो कंपनी है पतंजलि, इसके सीईओ का नाम क्या है? तो बिल्कुल आचार्य बालकृष्णन राजेश गोपीनाथन इज करेक्ट आंसर। तो बालकृष्णन याद रखिए, काफी है इतना। एंड फाउंडर के नाम में इन दोनों का नाम आता है। ये हो गए हमारे बालकृष्ण, और इनका नाम हमारे ख्याल से बताने की जरूरत नहीं है। तो ये दोनों ही आपके फाउंडर के हैसियत से आते हैं, मतलब फाउंडर हैं ये। अगर आपसे पूछा जाता है कि पतंजलि जो है वो कब स्टैब्लिश हुई, तो बिल्कुल जनवरी 2006 में पतंजलि को स्टैब्लिश किया गया है। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? तो आप लोग को पता होना चाहिए, इसका हेडक्वार्टर जो है वो हरिद्वार में है। बाबा रामदेव जो है वो काफी छाए हुए हैं अपने योग कलाओं की वजह से, है ना। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या पूछा है हम लोगों से? नेक्स्ट पूछा है रिलायंस। तो हु इज द सीईओ ऑफ रिलायंस? तो बिल्कुल आप लोगों को पता है ये किसका शक्ल दिख रहा है आप लोगों को, मतलब किसका फेस दिख रहा है? तो मुकेश अंबानी जो है वो सीईओ है रिलायंस के। एंड रिलायंस को कब स्टैब्लिश किया गया है? तो गाइज
8 में रिलायंस तो इम्पोर्टेंट है ना आप लोगों के लिए, क्योंकि जियो का जो नेट पैक है, या जियो जब आया था तो काफी लोगों ने सिर्फ जियो 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 ही खरीदा था। चलिए कोई बात नहीं। और साथ में शायद अब 5G फोन भी लॉन्च हो रहा है ना, तो यहाँ पर 8 में 1973 में रिलायंस को स्टैब्लिश किया गया, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर पड़ता है। एंड इसको बनाने वाले का नाम क्या था, तो बिल्कुल गुरु मूवी में जिनके बारे में दिखाया हुआ था उन्हीं ने इसको बताया है, तो धीरू भाई अंबानी इज करेक्ट आंसर। धीरू भाई अंबानी इज करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट हम लोग चले आते हैं। अच्छा, मुकेश अंबानी का नाम, इंडिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन में मुकेश अंबानी का नाम आता है, तो इस बात को याद रखिएगा। इंडिया के मैंने बताया, वर्ल्ड का नहीं, वर्ल्ड का तो आपका जेफ बेजोस हैं, अमेजन के जो सीईओ हैं और फाउंडर है। तो इंडिया के लिए अगर रिचेस्ट पर्सन पूछा जाता है तो बिल्कुल मुकेश अंबानी का नाम याद रखिएगा। और फोर्ब्स मैगजीन में इनका 17th नंबर पे नाम है। ओके, 17वें नंबर पे ये आते हैं सबसे अमीर इंसानों में, दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में। चलिए, मतलब बहुत पैसा दबाए हुए हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हु इज द सीईओ ऑफ नेटफ्लिक्स। तो नेटफ्लिक्स वगैरह बहुत ज्यादा ही आजकल चल रहा है ना, आप लोग वेब सीरीज वगैरह जो देख रहे हो, तो MX प्लेयर, नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम और पता नहीं क्या क्या कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे देख रहे हो। तो चलिए, डिज्नी हॉटस्टार। तो नेटफ्लिक्स के लिए आपसे पूछा जा रहा है कि नेटफ्लिक्स के सीईओ कौन है, तो बिल्कुल इनका पिक्चर हम लोग देख लेते हैं। तो इनका नाम है रीड हेस्टिंग्स। ठीक है, हेस्टिंग्स आया है, तो हेस्टिंग्स से आपको थोड़ा सा हिस्ट्री में भी ले चलते हैं। वॉरेन हेस्टिंग के कौन थे, तो हमारे गवर्नर, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल पूछा जाता है, तो वॉरेन हेस्टिंग बोलेंगे। ठीक है, बट रीड हेस्टिंग कौन है, तो ये हमारे नेटफ्लिक्स के सीईओ हैं। नेटफ्लिक्स को कब बनाया गया ये भी देख लेते हैं। तो 29 अगस्त को 1997 नेटफ्लिक्स को बनाया गया है। एंड हेडक्वार्टर इसका कहाँ पड़ेगा, तो बिल्कुल हेडक्वार्टर इसका कैलिफोर्निया में पड़ेगा, लॉस गैटोस कैलिफोर्निया में ही पड़ेगा। एंड इसके जो फाउंडर हैं, फाउंडर में आपका रीड हेस्टिंग्स का नाम आता है, बिल्कुल आता है फाउंडर में। तो बिल्कुल नेटफ्लिक्स के फाउंडर प्लस उसके सीईओ दोनों ही कौन है, रीड हेस्टिंग्स। ठीक है, साथ ही साथ आपको मार्क रेडोल्फ का भी नाम आता है। तो सिर्फ रीड हेस्टिंग्स याद रखिए, काफी है इतना। तो ये कुछ आपके कंपनी एंड सीईओ थे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ये क्लास जो है ये यहीं खत्म होती है, क्योंकि ये कुछ इम्पोर्टेंट थे जो मैंने आप लोगों से डिस्कस किए, साथ ही साथ ईयर भी आप लोगों को बताया कब स्टैब्लिश हुआ था, एंड हेडक्वार्टर प्लस उसके फाउंडर का भी नाम बताया है। तो जो पहले हम लोगों ने ज्यादातर जो गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, फिर आपके व्हाट्सएप हो गए, फेसबुक हो गए, ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, तो ये सारे हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं। दैट्स वाई आप लोग इन सबके सीईओ का नाम बहुत अच्छे से याद रखिएगा। ओके, चलिए, तो आज के लिए इतना ही और इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ रहेंगे, और प्लीज सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखिएगा और अच्छे तरीके से अपने सारे फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट कीजिए, एंजॉय कीजिए। प्रिपरेशन जरूरी है तो उसको मत छोड़िएगा, लेकिन हाँ, अब प्रिपरेशन के लिए ऐसा नहीं है कि हम थोड़ा एंजॉय भी ना करें, तो ये थोड़ा सा बोरिंग हो जाएगा, है ना। तो बिल्कुल आप अपने दिवाली को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कीजिए। एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि माई फैमिली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस बात को याद रखिए। ठीक है, मैं हर बार इस बात को बोल रही हूँ, इसलिए बोल रही हूँ ताकि आप लोग को ये याद हो जाए कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट का ये स्कीम है, राइट। बिल्कुल, तो आपको याद करवाने के लिए मैंने ये बताया था, कोरोना के टाइम पे उनका ये स्कीम आया हुआ था। चलिए कोई बात नहीं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अपने सारे फेस्टिवल्स को अच्छे से सेलिब्रेट कीजिएगा, और साथ ही साथ मेरे इस कोड को भी याद रखिएगा, है ना। तो बिल्कुल इस कोड को आप लोग याद रखेंगे, मुझे बहुत उम्मीद है आप लोगों से। तो आप इस कोड को याद रखिए, PRITI, और जब भी कोई कोर्स परचेस करना हो तो इस कोड का इस्तेमाल कीजिए ताकि आपको 10% डिस्काउंट। ठीक, तो ऐसे ही और कुछ वीडियोस मैं लाती रहूंगी, और साथ ही साथ अगर आप सजेस्ट करोगे तो ज्यादा बेहतर होगा। आपका जो पोर्शन क्लियर नहीं होगा या जिस पोर्शन में प्रॉब्लम होगी उसके रिलेटेड वीडियो मैं लेते आऊंगी, और भी बहुत सारे
रिवर वगैरह जो है वो आपको पढ़ाना बाकी है, तो वो हम लोग एक एक करके पर एग्जाम से पहले लेकिन सारे कवर कर लें। ओके, तो चलिए, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय एंड टेक केयर।